امام حسین آقا کریم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو، یہ وہ امام حسین ہے، میں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے امام حسین کو میں نے واپس لیا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، تو یہ امام حسین ہے، مقام ان کا اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں واپس دے کر حضرت امام حسین کو واپس لیتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین جب جو ہے آپ صحابہ کرام کے درمیان ہوا کرتے تھے تو حضرت امام حسین جو ہے خود صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ میری فضیلت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو صرف یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے میری خاطر اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے مجھے اللہ کے رسول نے اپنا لیا تھا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ حضرت امام حسین صحابہ کرام کے درمیان کہا کرتے تھے۔ تو امام حسین کا مرتبہ تو دیکھو کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنے بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں واپس کر کے امام حسین کو رکھ لیتے ہیں۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، اور یہ بھی اسی وقت جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نافذ فرما دیا تھا کہ اگر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو خدا کے حوالے کیا ہے اور اس کے بدلے میں امام حسین کو رکھا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ امام حسین کی ذات وہ ہے، امام حسین کی شخصیت یہ ہے کہ امام حسین جو ہے اسلام کی خاطر اپنے کنبے والوں کو شہید کر کے گویا کہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر کے دین اسلام کو بچانے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر امام حسین کو واپس لیا ہے۔ اب ایک وقت تو وہ تھا کہ فدیہ دے کر حضرت ابراہیم کو اللہ کے رسول نے امام حسین کو واپس لیا تھا کہ جب ظالموں نے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، ایک وقت وہ ہے کہ اللہ کے رسول فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے امام حسین کو لیتے ہیں۔ لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ظالموں نے اسی امام حسین کو جس امام حسین کو آقا کریم نے اپنے بیٹے کو دے کر لیا تھا، اسی امام حسین کو میدان کربلا میں تلواروں کے ذریعے سے وار کر کے 72 زخم لگا کر امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، کون ایسی آنکھ ہوگی جو امام حسین کے کہانی سن کر، امام حسین کے واقعات کو سن کر، کربلا کے واقعات سن کر جن کے آنکھوں میں آنسو نہ آیا ہو؟ کون ایسا شخص ہوگا جن کو امام حسین کی فریاد، امام حسین کے واقعات اور امام حسین کے حکایتوں کو سن کر گویا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہو؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں، میں نے بتایا تھا کہ ایک ایک کر کے کربلا کی دھرتی پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جانثار تھے وہ سب کے سب شہید ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کا بھائی حضرت قاسم بھی ہو چکے تھے، آپ کا بیٹا حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے تھے، آپ کا بھتیجا حضرت امام قاسم بھی شہید ہو چکے تھے، آپ کا بھائی حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بھانجے حضرت اون و محمد وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ اب اگر میدان کربلا میں امام حسین کے پاس موجود ہے تو یہ خود امام حسین کی ذات موجود ہے، امام حسین کا بیمار بیٹا حضرت زین العابدین موجود ہے، اور آپ کا ایک ننھا سا بچہ 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر موجود ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ایک ایک کر کے سب امام حسین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں، دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں۔ اب اگر موجود ہے تو حضرت زین العابدین موجود ہے، اب اگر موجود ہے تو 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر موجود ہے، اب اگر موجود ہے تو امام حسین موجود ہے۔ ادھر حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد، حضرت قاسم کی شہادت کے بعد، حضرت امام علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایسی صورت میں خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ، میرا چھوٹا سا علی اصغر کا حلق جو ہے بالکل خشک ہو چکا ہے، وہ اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرا کرتا ہے، پانی کی ایک بوند موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے امام علی اصغر کے خشک حلقے کو جو ہے تر کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں ام رباب آقا
का प्यारा नवासा हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा मोहतरमा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करती है कि या इमाम, मेरा दूध जो है खुश्क हो चुका है, मेरा तन जो है बिल्कुल सूख चुका है, मेरे अंदर दूध का एक कतरा भी मौजूद नहीं है, खेमे के अंदर एक पानी का कतरा मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए से इमाम अली असगर के खुश्क हल्क को तर किया जा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उम्मे रबाब जो है हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करती है कि या इमाम, बच्चों पर तो काफिरों को भी रहम आता है, ये जो सामने लोग मौजूद है ये अपने आप को तो मुसलमान कहा करते हैं, न जाने उनमें कितने ऐसे लोग भी होंगे जिनकी औलादें भी मौजूद होंगी, जिनकी औलादें होंगी। आप मेरे बच्चे को लेकर उनके पास तो जाए, उनसे पानी तलब कर ले, कहीं ऐसा ना हो उन जालिमों को मेरा बच्चा देखकर रहम आ जाए और वो एक दो घोट पानी जो है मेरे बच्चे को दे, हो सके कि मेरे बच्चे की जान बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब भी यही बात कहती है, हजरत बाप भी यही बात कहती है, हजरत सकीना भी यही कहती है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अरे वो जालिम बन चुके हैं, वो पत्थर दिल बन चुके हैं, उसके पास अब दिल मौजूद नहीं है, अब तो वो पानी के बजाय हम पर तीर बरसा रहे हैं। तुम्हें तो ये भी मालूम है उन जालिमों ने मेरे भाइयों को शहीद कर दिया है, उन जालिमों ने मेरे बेटों को शहीद कर दिया है, उन जालिमों ने मेरे भतीजों को शहीद कर दिया है, उन जालिमों ने मेरे भांजों को शहीद कर दिया है, उन्हें इस बच्चे पर भी रहम आने वाला नहीं है। लेकिन बार बार इसरार करने की बुनियाद पर, अपनी बहन ज़ैनब की बात मानने की बिना पर हजरत इमाम हुसैन जो है उन लोगों की तसल्ली के लिए हजरत इमाम अली असगर को अपने गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद ऊपर से एक कपड़ा ढकते हैं और उसके बाद मैदान कारजार में पहुंचते हैं। जाने के बाद इत्माम हुज्जत के तौर पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने छोटे बच्चे के ऊपर से पर्दा को हटाते हैं, कपड़ा को हटाते हैं। हटाने के बाद हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ये मेरा छोटा बच्चा है जिनका नाम अली असगर है, इनको प्यास की शिद्दत की बिना पर जो है इसका हल्क खुश्क हो चुका है, ये अपनी जबान को अपने होठों पर फेरा करता है। अरे तुम में से कोई भी कितने ऐसे भी शख्स होंगे जो औलाद वाले होंगे, जिनको औलाद की कब्र मालूम होगी। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं तुम्हें मेरे बच्चे का वास्ता नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी औलाद का वास्ता है, तुम मेरे बच्चे को 2 घूंट पानी पिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम में से बहुत ऐसे हैं जिन्हें बच्चों पर रहम आता होगा, तुम में से बहुत ऐसे हैं जिनकी औलादें भी मौजूद होंगी। इत्माम हुज्जत के तौर पर हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे तुम्हारी दुश्मनी है, अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे दुश्मनी है, अगर तुम बैअत चाहते हो तो मेरी बैअत चाहते हो, अगर तुम्हारी लड़ाई है तो वो लड़ाई मुझसे है। मेरे इस छोटे से बच्चे से तो तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे इस बच्चे को 2 घूंट पानी तो दे दो ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी सलामत के साथ बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन अपनी जहन की बात को सुनकर, इमाम हुसैन अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बात को सुनकर जो है उन जालिमों के सामने अपने बच्चे को ले जाकर इमाम हुसैन पानी तलब कर रहे हैं, लेकिन उनका जालिमों को जो है ना तो रहम आता है, ना तो इमाम हुसैन की बातों का असर होता है, ना तो उस बच्चे को रहम देखकर रहम आता है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, इमाम हुसैन कहते हैं नारे फरात का जो पानी है ये बहता हुआ जो समंदर की शक्ल में मौजूद है, ये पानी अगर तुम्हारे लिए है तो उन्हीं पानी में से 2 घूंट तो मेरे बच्चे को पिला दो। बार बार हजरत इमाम हुसैन का इस तरीके से अली असगर के लिए पानी का तलब करना था, लेकिन उन जालिमों को रहम नहीं आता। उन्हीं जालिमों में से एक जालिम रहता है जिसका नाम हुरमला हुआ करता है। वो हुरमल जो है हजरत इमाम हुसैन की तरफ निशाना करके तीर को जो है इस तरीके से कमान से निकाल कर जो है वो छोड़ता है कि वो तीर जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद पे जो हजरत इमाम अली असगर मौजूद है उसके हल्कों में लगकर जो है वो तीर इमाम हुसैन के बाजू में पाबंद हो जाता है। वो जालिमों से पानी मांगा गया था, लेकिन उन जालिमों ने पानी देने के बजाय हजरत अली असगर की तरफ जो है तीर के जरिए से निशाना करके इमाम अली असगर के हल्कों पर तीर चलाकर इमाम अली असगर के हल्कों को जो है खून से लहू लहान कर देता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं कि तीर जो है हजरत अली असगर के हल्कों से पाबंद होकर मेरे बाजू तक आ चुका है, तो हजरत इमाम हुसैन जो है उस तीर को निकालते हैं। तीर को निकालना था, थोड़ा सा खून का फव्वारा जारी होता है, इतने में एक जो है ठंडी सांस के
साथ हजरत इमाम अली असगर की रूह परवाज कर जाती है और इस तरीके से मैदान करबला में उन जालिमों के तीर के निशाने में हजरत अली असगर आ जाते हैं और आप अबदी नींद सो जाते हैं। और इस तरीके से वो छोटा सा परिंदा जिनको रूह जो है इस तरीके से मौजूद थी वो जो है जन्नत में पहुंच जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हजरत इमाम अली असगर है जिन्होंने भी 6 माह की उम्र में अपनी शहादत के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि पानी तो बहाना था कि जिस पानी की वजह से मुझे मैदान कारजार में ले गया था, दरअसल बात यह थी कि मैदान करबला में जब मेरे बड़े भाई ने अपनी जान को इस्लाम की खातिर कुर्बान किया था तो मेरे दिल ने भी ये चाहा था कि मेरे बड़े भाई ने जब इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है तो मैं भी क्यों ना अपनी जबान को अपने होठों पर फेर कर अपने अब्बू जान को ये बता सकूं कि मेरे भाई इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, तो मैं भी इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूं। बस यही तो वजह है कि हजरत इमाम अली असगर जो है अपनी जबान को अपने होठों पर लाकर फेर रहे थे ताकि इमाम हुसैन को पता चले कि मुझे प्यास की शिद्दत है और फिर इमाम हुसैन मुझे मैदान करबला में ले जाए और दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि जहां पे आपके बड़े भाई इमाम अली अकबर ने इमाम हुसैन की जान की खातिर, इमाम हुसैन की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया है, तो वहीं पे 6 माह का बच्चा इमाम अली अकबर का छोटा भाई इमाम हुसैन का बेटा इमाम अली असगर ने भी अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम की हिफाजत फरमाया है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, तो ये इमाम अली अकबर है जो अपने खून से अपनी शहादत से दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि ऐ औरतों और इस्लाम की शहजादियों और ऐ लोगों, अगर तुम्हें जब जरूरत पड़े इस्लाम की खातिर तो ये ना देखना कि ये कितने महीने का बच्चा है, ये ना देखना कि मेरा बेटा जवान है, बल्कि इस्लाम की खातिर अपने जवान बेटों को भी कुर्बान करते हुए नजर आना। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, तो ये इमाम अली असगर है। इमाम अली असगर को मैदान करबला में पानी के बजाय तीर के जरिए से वार करके इमाम अली असगर को शहीद कर दिया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, जब इमाम हुसैन ने देखा कि इमाम अली असगर की रूह परवाज कर चुकी है तो इमाम हुसैन जो है फिर उस कपड़े को ढक देते हैं। ढकने के बाद खेमे में लाने की कोशिश करते हैं, इधर खेमे में लेकर आते हैं। हजरत सकीना खुश हो जाती है कि हजरत सकीना खुश हो जाती है, वो सोचती ये है कि मेरे भाई को शायद पानी मिल चुका है, इसी वजह से वो तो खामोश है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत इमाम अली असगर इमाम हुसैन की गोद में और मौजूद थे और इमाम हुसैन लेकर मैदान करबला में जा रहे थे तो उस वक्त हजरत अली असगर रो रहे थे। हजरत अली असगर रोया करते थे, लेकिन जब हजरत अली असगर मैदान करबला से वापस आते हैं तो हजरत इमाम अली असगर खामोश है। हजरत सकीना सोचती है कि जब मेरा भाई गया था तो रोते हुए गया था, अब जब वापस आ रहा है तो खामोशी के साथ वापस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे भाई को पानी मिल गया होगा। लेकिन हजरत सकीना को क्या मालूम कि उन जालिमों ने पानी देने के बजाय इमाम हुसैन की गोद में तीर के जरिए से वार करके इमाम अली असगर को शहीद कर दिया है। अब जब खेमे के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना प्यारा शहजादा हजरत इमाम अली असगर को लेकर खेमे के अंदर तशरीफ लाते हैं, जब सकीना कहती है कि बाबा जान ऐसा लगता है कि मेरे भाई को पानी मिल गया है, हजरत इमाम हुसैन जो है कपड़ा उठाते हैं। कपड़ा हटाने के बाद जो है हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मेरी बेटी सकीना, मेरे बेटे को पानी जरूर मिला है लेकिन नहरे फुरात का पानी नहीं बल्कि हौज़े कौसर का पानी मिला है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, जब उन जालिमों ने इस तरीके से इमाम अली असगर के हल्क पर तीर को पैवस्त किया और इमाम हुसैन जो है अपने बेटे अली असगर को लेकर खेमे के अंदर आते हैं तो ऐसी सूरत में वहां जितनी शहजादी रसूल मौजूद होती है, जितनी बेवाएं मौजूद होती है, जितनी औरतें मौजूद होती है, वो सब के सब रोना शुरू करती है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अब तक तुमने सब्र किया है, सब्र का दामन थामे रखो। तुमने अली अकबर को भी शहीद होते देखा है लेकिन तुम सब्र कर रहे थे, तुमने अली अकबर को भी शहीद होते देखा है, तुम सब्र का दामन थामे हुए थे। इमाम कासिम को शहीद होते हुए देखा है, तुम सब्र का दामन थामे हुए थे। तुम इमाम
अब्बास अलमदार को भी शहीद होते हुए देखा है। तुम लोगों ने सब्र का दामन थामा हुआ था। अब अली असगर को देखकर आंखों से आंसू ना बहाओ, इस तरीके से गिरियावजारी न करो, बल्कि अब भी सब्र का दामन थामे रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद यहीं पे आपको मैं इमाम हुसैन की फजीलत के हवाले से एक वाकया और बताना चाहूंगा। आपको पता है जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने प्यारे शहजादे हजरत अली असगर को लेकर वापस आ रहे थे, तो उसी वक्त यमन की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला यमनी जिनका नाम है, उसका जहाज जो है समंदर में गिर रहा था, समंदर में हिचकोलियां खा रहा था, समंदर में डूब रहा था। ऐसे मौके पर अब्दुल्ला यमनी ने वहीं से पुकार कर कहा था, ऐ हुसैन मेरी मदद करे। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों,